Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be discussing about a very interesting chapter, that is chapter number 3 of the book Beehive, class 9 CBSE, and the title of the chapter is The Little Girl, written by Katherine Mansfield. So before we discuss this chapter in detail, let's talk about the writer of this chapter. Kathleen Mansfield Murray was a prominent writer who was born on 14 October 1888 in New Zealand. She wrote short stories and poetry under the pen name Katherine Mansfield. So my dear children, the actual name of the author, of the writer, was Kathleen Mansfield Murray, and she was born on 14 October 1888 in New Zealand. But she used to write short stories and poetry under the pen name Katherine Mansfield. Mansfield was diagnosed with pulmonary tuberculosis in 1917, and she died in France on 9 January 1923. But in the year 1917, she was diagnosed with tuberculosis, TB, and finally in the year 1923, on 9 Jan, she died in France. So that was a short and brief description about the author Katherine Mansfield. And now we'll start this beautiful chapter in detail. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Now, my dear children, in this chapter, in this story, we are going to study about a little girl, and this little girl was very, very, very afraid of her father. Here it is written that to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. His father was a person. A figure means a person. To be feared and avoided means the little girl was very much afraid of her father. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." So every morning her father, before going to work, would come into her room and give her a casual kiss. Casual kiss means a general kiss, a routine kiss. And for that she would respond with, "Goodbye, father." यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लिटिल गर्ल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लिटिल गर्ल अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। और फादर एक ऐसे शख्स थे, फिगर मीन्स एक ऐसे इंसान थे जिससे वो इतना ज़्यादा डरती थी कि हमेशा कोशिश करती थी कि अपने पापा से दूरी बनाए रखें या पापा को अवॉइड करें। अवॉइड मतलब उनके नज़दीक ना जाएं। एंड एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता था कि पापा, जो इस लिटिल गर्ल के जो फादर थे, वो इस लिटिल गर्ल के रूम में आते थे और एक कैजुअल किस करते थे। कैजुअल किस मतलब एक रूटीन किस जो माँ बाप प्यार से अपने बच्चों को करते हैं, और किस करने के बाद वो चले जाते थे अपने काम पर। और जब वो किस करते थे तो ये लिटिल गर्ल कैसे रिस्पॉन्ड करती थी, क्या जवाब देती थी? शी यूज्ड टू से दैट, "गुड-बाय फादर." वो कहती थी, "गुड-बाय फादर." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और relief means सुकून, और इस लिटिल गर्ल को बहुत सुकून मिलता था जब ये खिड़की से देखती थी या फिर सुनती थी। कैरेज मीन्स गाड़ी, गाड़ी की आवाज़। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर मतलब क्या होता है? कम होते जाना। जब कोई गाड़ी हमारे पास से गुजरती है, जब हमारे नज़दीक रहती है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है,
और जैसे जैसे वो गाड़ी दूर जाती रहती है वैसे वैसे उसका आवाज़ क्या होता रहता है, घटता रहता है। फेंटर का मतलब क्या होता है, आवाज़ और हल्की होती जाती जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती है। वैसे ही जैसे जैसे पापा की गाड़ी दूर जाती रहती थी, इस बच्ची को अंदर से एक बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि पापा से इतना डरती थी कि वो नहीं चाहती थी कि घर में पापा रहें। और जब पता चलता था पापा जा चुके हैं ऑफिस के लिए या पापा आप काफ़ी दूर निकल गए हैं, तो बच्ची को बहुत सुकून मिलता था कि चलो पापा घर में नहीं हैं। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. And what happened normally? शाम जब होती थी और जब पापा वापस लौट के आते, जब इनके फादर वापस लौट के आते थे, शी वुड स्टैंड नियर दैट स्टेयरकेस। वो जो सीढ़ियाँ होती थी वहाँ पर ये बच्ची खड़ी होकर अपने पापा को दूर से देखती रहती थी, क्योंकि शी वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड शी वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू गो क्लोज टू हर। और वो अपने पापा की आवाज़ सुनती थी, भारी आवाज़ में पापा कहते थे कि टी लेकर आओ मेरे पास ड्राइंग रूम में, मैं वहाँ बैठकर चाय पीऊँगा। पेपर कहाँ, अभी तक पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर। मदर देखो कहाँ है मेरा न्यूज़पेपर, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे जो है स्लीपर्स भी लेके आ जाओ, मेरे चप्पल भी लेकर आप आइए, आओ। ठीक है, तो इस तरीके से वो जब घर आते थे तो वो बात करते थे और ये बच्ची ये सब कुछ सुनती रहती थी। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. Now this little girl, her name is Kezia, and mother would call her. अब जो माँ है केजिया की, वो केजिया को बुलाती थी कि देखो तुम एक अच्छी बच्ची हो ना, जाओ पापा के पास और उनके जूते जो पैरों में पहने हुए हैं जूतों को उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs. Okay, slowly the girl would slip down the stairs. यहाँ पे slip down the stairs का मतलब होता है going unwillingly, बेमन से जाना, क्योंकि बच्ची का बिल्कुल भी मन नहीं करता अपने फादर के पास जाना। केजिया का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन चूंकि मदर का इंस्ट्रक्शन था इसलिए वो बेमन से जो है सीढ़ियों से उतरती है और हॉल की तरफ जाती है, धीरे से जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है, पुश करती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक वो उस रूम में पहुंचती है तब तक पापा चश्मा पहन चुके रहते हैं और उस चश्मे से जब वो देखते हैं केजिया की तरफ तो बहुत ही भयानक दिखते हैं केजिया को। केजिया को बहुत ज़्यादा डर लगता है अपनी पापा को जब वो देखती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब फादर जब केजिया को देखते तो कहते हैं केजिया जल्दी आओ, जूते उतारो मेरे पैरों से और इसको बाहर रख कर आओ और ये बताओ आज तुम अच्छी बच्ची बनकर रही, आज तुमने कोई शरारतपन तो नहीं किया घर में। आई डोंट नो, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। ठीक है, फादर व्हाट ही इज सेइंग नाउ, लिटरली व्हाट इज हैपनिंग हियर, द गर्ल शी इज सो अफ्रेड ऑफ अ फादर कि वो पूरी तरह बोल भी नहीं पा रही और वो हकला रही है। स्टटर मीन्स हकलाना, लड़खड़ाना बोलने में। ओके, अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा हकला रही है, बोल नहीं पा रही। और इस पर जो है फादर का क्या कहना है कि सी, अगर तुम इसी तरीके से बात करते वक्त स्टटर करोगी, हकलाओगी, ओके, तो व्हाट विल हैपन, मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर, तो मैं तुम्हें जो हूँ डॉक्टर के पास भेजूंगा मदर के साथ। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. Now this girl Kezia, she never stuttered with other people. Whenever this girl would talk with other people, she never stuttered. जब दूसरे लोगों से बात करती थी केजिया तो कभी उसको हकलाने की जो है दिक्कत नहीं होती थी, बातें जो है रुकती नहीं थी। और बहुत पहले ये सब चीज़ें हुआ करती थी लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन वेनेवर शी वुड टॉक विद हर फादर, लेकिन जब फादर से बात करती है तो लिटरली ये जो हकलाना है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड शी वुड लुक फॉर वर्ड्स, यू नो, और वो शब्दों को खोजती रहती कि मैं क्या शब्द बोलूँ पापा के सामने। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, मदर आई विश
you taught this child not to appear on the brink of suicide. Now the father is saying, what is the matter? क्या बात है? Why are you looking so wretched about? Wretched means unhappy. Now the father, whenever he sees this girl, he feels that she is very nervous, and this is the fact, she is very nervous. और जब भी केजी अपने फादर के सामने जाती है, एकदम मुंह उतार के, उदास बनकर, दुखी चेहरे के साथ जाती है, और उस उदास चेहरे को देखकर जो है फादर भी जो है थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, मदर, अपनी मदर से कहते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ठीक है, आपको इसे सिखाना चाहिए कि कैसे ये मुंह उतार कर, उदास बनकर, ऐसा लगता है जैसे ये सुसाइड करने जा रही है, सुसाइड करने के कगार पर है. ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन सुसाइड करने के कगार पर है, ऐसा चेहरा बना के घूम रही है. इसको कुछ सिखाइए कैसे रहना चाहिए, हंसा करे हमेशा, चेहरे पर एक स्माइल हो. Here Kezia, carry me teacup back to the table carefully. Now फिर वो कहते हैं कि ये लो टी का कप लो और जाके टेबल पे रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Now this little girl, for her father's hands, his neck, his mouth, everything is so big, you know. फादर के जो हाथ हैं, जो गर्दन है, जो मुंह है, वो इस बच्ची को ऐसा लगता है इसे बहुत बड़ा है. और स्पेशली व्हेन ही yawned, yawned मीन्स व्हाट, जमाई लेना. ठीक है ना, जब नींद आती है तो हम जमाई लेते हैं, तो जब भी वो जमाई लेते हैं, व्हाट हैपन्स, इतना बड़ा मुंह खोलते हैं कि बच्ची को लगता है कि मेरे फादर बहुत बड़े हैं. ओके, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट. और पापा के बारे में सोचना मतलब लगता है जैसे किसी महान विशाल व्यक्ति के बारे में सोचना. जाइंट मीन्स व्हाट, समबडी हु इज अबव द नॉर्मल साइज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. ओके, आमतौर पर जो आम इंसानों की तरह ना हो बल्कि उनसे बड़ा हो, ठीक है, साइज में, उनको जाइंट बुलाया जाता है. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. And every Sunday, you know, afternoon, grandmother would send her down to the drawing room. और हर संडे दोपहर में अक्सर जो दादी हैं वो केजिया को कहती हैं कि जाओ ड्राइंग रूम में और अपनी मम्मी पापा के साथ कुछ समय बिताओ, बैठो, उनसे बात करो. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. And whenever this little girl would come in the drawing room, she would see her mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, you know, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. और जब भी ये केजिया जो है, जब ये ड्राइंग रूम में आती है तो हमेशा क्या देखती है, मदर कुछ बुक रीड कर रही हैं, फादर सोफे पर लेटे हुए हैं, चेहरे पर रुमाल डाले हुए, हैंडकर्चिफ मीन्स रुमाल, और पैरों के नीचे क्या है, तकिया रखी हुई, कुशन मीन्स व्हाट, तकिया. स्लीपिंग साउंडली, साउंडली मीन्स नाइस स्लीप, सुकून भरी नींद ले रहे हैं. एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स व्हाट, खर्राटे लेना. ठीक है, मीन्स बड़े आराम से सो रहे हैं, पापा भी सो रहे हैं और मदर क्या कर रही हैं, वो बुक रीड कर रही हैं. She sat on a stool gravely, watched them until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो क्या करती है, दिस गर्ल, शी वुड सिट ऑन ए स्टूल, एक स्टूल पर बैठ जाती है. ग्रेवली मीन्स वेरी सीरियसली, और बहुत ही गंभीरता से अपने फादर को देखती रहती है जब तक कि फादर खुद उठते नहीं हैं और पूछते हैं कि टाइम क्या हो रहा है. देन लुक्ड एट हर, फिर वो केजिया की तरफ देखते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. और जो वो देखते हैं कि केजिया जो है उनको घूर घूर के देख रही है, तो वो कहते हैं केजिया से, इस तरह घूरो मत मुझे, तुम जब घूरती हो तो कैसे लगती हो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. एक लिटिल ब्राउन आउल, आउल मीन्स के उल्लू है ना, तुम वैसे दिखती हो जब घूर घूर के देखती हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So meanwhile what happened, one day she was kept indoors with a cold, थोड़ी ठंड लग गई थी, घर पर ही थी वो केजिया, और हर ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने बताया कि आपके फादर की बर्थडे, अगले वीक आपके फादर की बर्थडे है,
और तुम्हें कोई गिफ्ट करना चाहिए अपने फादर को, एंड यू शुड गिफ्ट हिम ए पिन कुशन, ओके। एक पिन कुशन तुम गिफ्ट करो, और वो भी किसका बना हुआ, येलो सिल्क, सिल्क कपड़े का बना हुआ, येलो कलर के सिल्क कपड़े का बना हुआ एक पिन कुशन तुम गिफ्ट करो। व्हाट डू यू मीन बाय पिन कुशन? Basically, pin cushion is a small, soft object into which pins can be pushed to keep them safely until you need them. Okay, that is called pin cushion. Pin cushion जो होता है वो तकिए की तरह ही होता है, लेकिन बहुत छोटे साइज का होता है, और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जो हमारे घर में सुई होती है, जो पिन्स होते हैं, अमूमन हम अपने घरों में पिन्स कहाँ पर रखते हैं? किसी डब्बे में रखते हैं। सुई धागा, सुई कहाँ पर रखते हैं? किसी डब्बे में रखते हैं। बट नॉर्मली इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है ये जो पिन्स हो या फिर नीडल जो होते हैं, ये सब वो लोग क्या करते हैं, किसी डब्बे में नहीं रखते। एक छोटा सा तकिया जैसा होता है जिसे कुशन बोलते हैं, पिन कुशन बोलते हैं, उसी कुशन में जो है वो उसे चुभो देते हैं, उसी में जो है वो रखते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ से निकाल लेते हैं, फिर जो है वहीं पर लगा देते हैं। So this is what her grandmother suggested her, to gift her father as a birthday gift. You can see it on your screen. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं राइट साइड, ये जो पिक्चर बनी हुई है, दिस इज एक्चुअली पिन कुशन, जिसपे कुछ पिन्स भी लगे हुए हैं। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. Laboriously means very, with lot of difficulty and hard work, बड़ी मेहनत करके this little girl, उसने जो है उस येलो सिल्क का जो है उन्होंने जो है कपड़ा लिया और 3 तरफ से जो है उसको सील दिया। 4 तरफ से सीलना चाहिए, लेकिन 3 तरफ से सिला। चौथे तरफ से क्यों नहीं सिला? क्योंकि चौथे तरफ से उसमें कुछ भरना था। जैसा आप जानते हैं तकिए के अंदर क्या भरी जाती है? रुई भरी जाती है। तो इस बच्ची को भी कुछ अंदर भरना था, इसीलिए उसने क्या किया था कि सिर्फ 3 तरफ से ही सिला था और जो चौथे तरफ से उसको खुला रखा था। अब ये सवाल था कि उसमें क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। So what happened? She decided to ask her grandmother, but grandmother was out in the garden. लेकिन grandmother जो है garden में थी। फिर she went into her mother's bedroom. फिर वो टहलते हुए अपने मदर के बेडरूम में गई to find out, ठीक है, कि वहाँ पे कुछ मिल जाए। And there she went to look for scraps. Scraps means, what do you mean by scraps? Scraps means, small pieces of cloth or paper, कोई भी that normally that are not नीडेड, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं रहती अमूमन, कोई भी टुकड़े कपड़ों का, बेकार कपड़े मिल जाए या कागज़ मिल जाए, कुछ भी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. Meanwhile, her eyes, caught the attention of a few fine papers that were kept on the bed table. इतने में इस बच्ची की नज़र कहाँ पर पड़ी? बेड के पास जो टेबल था उसके ऊपर कुछ ढेर सारे पन्ने रखे हुए थे, ठीक है, पेपर्स रखे हुए थे, फाइन पेपर्स, अच्छे पेपर्स रखे हुए थे। अब इस गर्ल केजिया ने क्या किया? शी टुक दोज पेपर्स, टोर देम, टोर मीन्स फाड़ देना, इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दी, एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ्ड मतलब भर देना। किसमें भर दी? उस जो पिन कुशन वो बना रही थी उसमें उसने भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और जो चौथा जो पोर्शन खुला हुआ था, 3 तरफ से सिला हुआ था, चौथा पोर्शन खुला हुआ था, उसको भी उसने सील दिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Okay, now that night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means lot of protest, angry protest, बहुत हंगामा। कहने का मतलब उस रात घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, because actually what was the reason? Father's great speech for the port authority had been lost. इनके फादर जो हैं केजिया के, उन्होंने एक स्पीच तैयार किया था, बढ़िया सा स्पीच, जो शायद वो अपने ऑफिस के लिए स्पीच हो सकता है। पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी जहाँ पर वो जॉब करते थे। पोर्ट मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में भी कॉल इट बंदरगाह, हार्बर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर कोई और पोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एयरपोर्ट की बात हो रही है, वी रियली डोंट नो एग्जैक्टली, बट पोर्ट अथॉरिटी, ओके। और वो पेपर्स, एंड हर फादर वॉज लुकिंग फॉर दैट पेपर्स। Rooms were searched, servants questioned.
अब सारे रूम्स की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछा गया. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Finally what happened, जो मदर हैं वो केजिया के रूम में गई और केजिया से कहीं, तुमने तो नहीं देखा टेबल, हमारे रूम के जो टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे? तो केजिया ने कहा, ओ यस, हाँ मैंने देखा है, मैंने उनको फाड़ दिया है अपने सरप्राइज के लिए. मदर वॉज शी वॉज इन स्टेट ऑफ एस्टॉनिशमेंट एंड शी स्क्रीम्ड. और वो एकदम चकित हो गई, वो चीखी, क्या तुमने किया तुमने? और उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्ट्रेट डाउन, कम टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. दिस इंस्टेंट मीन्स इसी वक्त, तुरंत आओ डाइनिंग रूम में. एंड देन व्हाट हैपेंड, शी वाज ड्रैग्ड डाउन. उसके बाद घसीटते हुए मदर ने जो है केजिया को नीचे डाइनिंग रूम में ले गई. और वहां पर क्या हो रहा था? फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो. ठीक है, पेसिंग टू एंड फ्रो की मतलब होता है आदमी जो है इधर उधर टहलना. खास तौर पे जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो, कन्फ्यूजन हो, बहुत गुस्से में आदमी क्या करता है ना, इधर उधर टहलता रहता है बड़े गुस्से में. दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो. ठीक है, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक एंड हिज हैंड्स वर बिहाइंड हिज बैक. वेल, ही सेड शार्पली. Mother explained. He stopped and stared at the child. Now mother explained everything. Mother told him, what all happened. माँ ने पूरी बात बताई फादर को क्या क्या हुआ है, और इस बच्ची ने ही उस पेजेस को फाड़ा है. Now he became very angry. He stopped and stared at the child. उन्होंने घूर. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See, the child is put to bed this instant. Now the father asked Kezia, did you do that? क्या तुमने ये काम किया है? And now she is very much afraid, वो इतना ज़्यादा डरी हुई हैं. Whispered means, without any noise, बहुत ही धीमी आवाज़ में कुछ बोलना. और वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कह रही है, नो 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 फादर. नाउ जो फादर है वो कह रहे हैं, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. फेच मीन्स टू ब्रिंग. वो कह रहे हैं जाइए उस रूम में और उस स्टूपिड चीज को लेकर आइए. दैट डैम थिंग इज व्हाट? टॉकिंग अबाउट दैट पिन कुशन. सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और इसको तुरंत अपने रूम में भेजकर इसको बोलिए सो जाए. पुट टू बेड मीन्स तुरंत इसको बिस्तर पे सुला दीजिए इसी वक्त, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता हूं. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Now she is crying too much. बहुत ज़्यादा रो रही है, अपने रूम में बैठी हुई है और अंधेरा है रूम में. और जो इवनिंग लाइट है, जो अमूमन घर में जो है रात के समय एक छोटी सी लाइट जो जलाई जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, और उस इवनिंग लाइट में जो तरह तरह के जो पैटर्न, तरह तरह के जो आकार ज़मीन पर बन रहे हैं, उसको वो देख रही है, बहुत उदास है. इसी बीच में क्या हुआ? देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स. मीनवाइल द फादर ही एंटर्ड द रूम एंड ही इज होल्डिंग ए स्टिक इन हिज हैंड. उनके हाथ में एक रूलर है, एक डंडा है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. और रूम में फादर आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी आज पिटाई करूंगा. और वो चीखते हुए अपने आप को जो है, जो बिस्तर पर जो चादर है, उस चादर से अपने आप को ढकने की, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है. ही पुल्ड देम असाइड. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और उसके बाद उन्होंने चादर हटाया, कहा बैठो, अपना हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें सबक सिखानी ही पड़ेगी कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको तुम्हें नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Ab this little girl Kezia, she is trying to explain her father that she prepared that pin cushion for
his birthday. अब वो समझाने की कोशिश कर रही है फादर को कि आपके बर्थडे के लिए मैंने वो बनाया है, लेकिन तब तक क्या हो गया, पापा ने जो है उस पिंक पाम्स है ना, चूंकि बच्ची छोटी है तो उसके हाथी पाम्स मतलब क्या होते हैं, हथेली, वो कैसे के हैं, पिंक कलर के हैं, और तुरंत जो है उन्होंने उस पर क्या किया, रूलर से दे मारा. आवर्स लेटर, कुछ घंटे बीत गए. नाउ दिस गर्ल बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई. अल्टीमेटली हर ग्रैंड मदर रैप्ड हर इन ए शॉल, और जो ग्रैंड मदर है उन्होंने जो है इस बच्ची को, केजिया को शॉल में, अपने शॉल में ओढ़ दिया, ढक लिया. रॉकिंग चेयर का मतलब होता है जो चेयर ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमती रहती है या फिर आगे पीछे होती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड रॉकिंग चेयर. और अपनी गोद में लेके उसमें बैठ गई. एंड दिस लिटिल गर्ल क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना, वो एकदम अपनी दादी से चिपक गई. वॉट डिड गॉड मेक फादर फॉर? नाउ दिस गर्ल आस्किंग हर ग्रैंड मदर कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया, पापाओं को क्यों बनाया, फादर्स है ना, ये जो पिता हैं, फादर्स हैं, इनको क्यों बनाया भगवान ने. शी सॉब्ड मीन्स वॉट, सिसक कर रोना, ठीक है ना, दैट इज वॉट सॉब्ड मीन्स. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. ग्रैंड मदर ने कहा, ये लो रुमाल, हैंकी मीन्स रुमाल, अपने नाक साफ करो, सो जाओ. पेट मीन्स डार्लिंग, देखो प्यार से, डार्लिंग सुबह जब होगी सब कुछ तुम भूल जाओगी, अब जाओ सो जाओ. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. नाउ ग्रैंड मदर सेड, सी तुमने जो काम किया उससे पापा बहुत ज़्यादा अपसेट है. मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक and red color flew into her cheeks. But this incident was somewhere, got stuck deep into the mind of this little girl. लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं केजिया के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई थी. और उसके बाद जब भी वो अपने पापा को देखती, तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती, और उसके चेहरे पर जो लाली थी, उस बच्ची की चेहरे पर जो उसकी गालों पर जो लाली थी, वो पापा को देखते ही क्या हो जाता था, वो लाली हट जाती थी. वो चाहे पापा को देखते उसका चेहरा जो है एकदम सूख जाता था, वो दुखी हो जाती थी अपने फादर को देखते ही. द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब ये जो केजिया जो जिस घर में रहती थी, उनके जो पड़ोसी थे, केजिया के जो पड़ोसी थे, वो कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस मैकडोनल्ड, और उनके 5 बच्चे थे. और केजिया जब भी अपने जो बाउंड्री से, अपने घर के दीवार से छोटा सा गैप था वहाँ पर, उस गैप में से, उस छेद में से जब वो देखती थी उस पार क्या हो रहा है मेरे पड़ोसियों के घर में, तो वो देखती थी कि जो मैकडोनल्ड हैं, जो फादर हैं, वो हमेशा अपने बच्चों के साथ, कितने बच्चे थे उनके, 5 चिल्ड्रन, हमेशा उनके साथ वो खेलते रहते थे. और जो बेबी माओ है, जो सबसे छोटा बच्चा है, वो कंधे के ऊपर रहता था, और 2 गर्ल्स जो हैं वो उनके पॉकेट पकड़ के उनके चारों तरफ घूमती रहती थी. तो कहने का मतलब ये है कि सब हंसते रहते थे, खेलते रहते थे. और एक इनके फादर थे जो कि ना ही कभी इसके साथ खेलते थे केजिया के साथ, ना ही कभी केजिया से प्यार से बात करते थे. ये ऐसा केजिया सोचती थी. ओके. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच दम लाफिंग ऑल द टाइम. एक बार केजिया ने क्या देखा है कि जो मैकडोनल्ड्स के बच्चे हैं, दे टर्न द होज ऑन हिम. होज मतलब क्या होता है, किसी भी पाइप, वाटर पाइप का आगे वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जिससे पानी की धार निकलती है. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन बच्चों ने क्या किया, अपने पापा के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया उस पाइप से. बट द रिएक्शन ऑफ मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज वेरी सरप्राइजिंग. इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग द बॉयज, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज प्लेइंग विद देम, ही वॉज ट्राइंग टू कैच देम. लेकिन मैकडोनल्ड नाराज होने के बजाय
उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जबकि केजिया के फादर के साथ अगर ऐसा होता, केजिया अगर ऐसा करती केजिया के अनुसार, तो उसकी जो है बिल्कुल उसे मार पड़ती। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। उस दिन केजिया ने ये समझी, इस बात को समझी कि ओके, जो फादर्स होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, अच्छे फादर्स भी होते हैं, बुरे फादर्स भी होते हैं। ऐसा जो है केजिया का मानना था। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. One day what happened, Kezia's mother, she became ill and she and grandmother went to hospital. Kezia की मदर एक दिन बीमार पड़ गई। अब दादी और केजिया की दादी और केजिया की मदर दोनों हॉस्पिटल चले गए, घर में कोई नहीं था। एंड दिस लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और घर की जो कुक हैं, जो खाना बनाती, जिनका नाम एलिस था, एलिस और केजिया बस दो ही लोग घर में थे। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर का समय तो कट गया। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात हुई और एलिस जो है केजिया को सुलाने की तैयारी कर रही थी रात के समय बेड पर, तब अजीब सा डर जो है केजिया के मन में छाने लगा। वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, शी आस्क्ड। अब केजिया जो है घबरा गई है। केजिया जो है, कुक जो है एलिस, उनसे पूछ रही है क्या होगा मेरे साथ, क्या करूं मैं, इफ आई हैव ए नाइट मेयर। नाइट मेयर मीन्स बुरा सपना, बैड ड्रीम। वो कहती है अगर रात में कोई बुरा सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी, दादी भी नहीं है, मदर भी नहीं है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। नाउ दिस लिटिल गर्ल केजिया, शी सेज दैट अक्सर मुझे रात में बुरे सपने आते हैं, जब भी आते हैं दादी जो है मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाती है और मैं आराम से सो जाती हूँ। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं इस अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, अंधेरे कमरे में मुझे ऐसा लगता है कि हर कोने से आवाज़ें आ रही हैं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. Now the cook, Alice, she told Kezia to go to sleep, and she removed her socks, and she also told her not to scream because, her father, poor pa means somebody who is very tired of, the day's work, and now he wants rest, और दिन भर के थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और ऐसे में तुम चिल्लाना मत, आराम से जो है सो जाना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. When she could not move, could not stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What is the matter?" he said. But unfortunately what happened, when Kezia was sleeping, she had that same old nightmare again. फिर से वही बुरा सपना केजिया ने देखा। क्या देखा उस बुरे सपने में? The butcher with a knife and a rope coming close to her, smiling with a dreadful smile. Butcher means कसाई वाला, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कसाई वाला, जो मीट काटता है। तो उसने सपने में क्या देखे केजिया ने? एक कसाई वाले को जिसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है। ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल मीन्स डेंजरस स्माइल, खतरनाक मुस्कान के साथ केजिया की तरफ बढ़ रहा है। And Kezia was so shocked that she could not move. Kezia हिल नहीं पाई और she started crying, "Grandma, Grandma." But Grandma was not there. She woke shivering, और कांपते हुए वो जब उठी, she saw her father standing next to her with a candle in his hand. और जब उठी तो उसने क्या देखा? बगल में पापा खड़े हैं, हाथ में कैंडल है, और पापा क्या कहते हैं? What is the matter? क्या हो गया? Oh, a butcher. A knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. Now this girl Kezia ने बताया
कि मैंने सपना देखा है फिर से वो कसाई हाथ में चाकू लिए हुए और मुझे दादी के पास जाना है। तो फादर ने क्या किया, उन्होंने कैंडल को बुझाया, वो झुके, उसके बाद उन्होंने केजिया को अपनी गोद में लिया और बेडरूम की ओर, अपने बेडरूम की ओर बढ़ गए। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और उस बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, उन्होंने उस न्यूज़पेपर को हटाया और उसके बाद टक्ड अप का मतलब होता है कवर अप। उसके बाद उन्होंने अपने बेड पर केजिया को लेटाया और केजिया के ऊपर चादर उड़ाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और अपने बगल में केजिया को सुलाया। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Now this girl, she is still in half sleep. अभी भी आधी नींद में है ये बच्ची, और अभी भी वो कसाई की मुस्कान के बारे में सोच रही है। बट शी क्रेप्ट का मतलब होता है सरकना। वो धीरे से सरकते हुए अपने पापा की नज़दीक गई। स्नगल्ड हर हेड, स्नगल्ड का मतलब होता है अपने सर को एकदम नज़दीक ले आना, सटा देना कहते हैं ना जिसे हिंदी में। तो उसने अपने पापा के हाथों के नीचे, अपने पापा के हाथों के ऊपर जो है उसने अपने सर को जो है रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और कस के जो अपने पापा की शर्ट को पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और एक बार पापा को जब कस के उसने पकड़ लिया, अब उसे रात से डर नहीं लग रहा था, अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा कि तुम्हारे पैर एकदम ठंडे हो चुके हैं, मेरे पैरों से अपने पैरों को रगड़ लो, पैर थोड़े गर्म हो जाएंगे और आराम से सो जाओ। Tired out, he slept before the little girl, and the father is very much tired. बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सुबह से ऑफिस गए हैं, शाम को आए हैं, और वो इससे पहले कि केजिया सो जाती वो सो गए, उनकी आंख लग गई। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. अब केजिया अपने फादर के बारे में जो सोच है बदल गया है। केजिया अब अपने फादर के बारे में दूसरे तरीके से सोच रही है। कह रही है पुअर फादर, पुअर मीन्स बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं जितना मैं सोचती थी कि इतने जायंट और विशाल इंसान है वो कि डर लगता है उनके पास जाने से, ऐसा भी नहीं है। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और बेचारे मम्मी भी हॉस्पिटल में, दादी भी हॉस्पिटल में, कोई उनका देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर चूँकि ओल्ड एज हैं, उनका स्किन बहुत सॉफ्ट हो गया है, लेकिन फादर का स्किन जो है काफ़ी वो स्टिफ है, और उनकी मजबूत शरीर जो है वो थोड़ी सी कड़क शरीर जो है, ग्रैंड मदर से ज़्यादा कड़क शरीर महसूस हो रही है केजिया को। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन अच्छा लग रहा है पापा की जो है पास लिपट कर सोने में। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। नाउ दिस गर्ल इज़ थिंकिंग कि दिन भर मेरे पापा इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कि मिस्टर मैकडोनल्ड कैसे बनेंगे वो, इतना मेहनत जो करते हैं, उनको आराम भी तो ज़रूरत है। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, और वो मनी मन सोचने लगी कि पापा की मेहनत की हुई जो भी राइटिंग्स थी, जो स्पीच था, मैंने उसको फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली, स्टर्ड मीन्स टू चेंज हर डायरेक्शन, वो तुरंत जो है करवट बदली। एंड साइड, और एक लंबी सी सांस ली। What is the matter? asked her father. इतने में पापा ने पूछा क्या बात है? Another dream? क्या फिर से सपना देखा? Oh, said the little girl. My head is on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. और लिटिल गर्ल ने अपने फादर से कहा, अरे पापा मेरा सर जो है ना आपके दिल के पास है, और आपके दिल की जो धड़कन की आवाज़ है ना वो मुझे सुनाई दे रही है। What a big heart you have got. कितना बड़ा दिल है आपका, father dear. And by this, we come to the end of this story. This last line, my dear children, what a big heart you have got. कि आपका दिल कितना बड़ा है।
इट हैज़ टू मीनिंग्स. वन लिटरल मीनिंग क्या है कि आप इतने साइज में बड़े हो कि आपका दिल बड़ा है. दूसरा मीनिंग क्या है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे, मुझे इतना प्यार करोगे, मुझे अपने साथ आप बेड पर सुलाओगे, और जो डर था मेरे अंदर वो डर चला जाएगा. मैंने कभी सोचा नहीं था. आपका तो बहुत बड़ा दिल है फादर. एक मीनिंग ये भी है. So I hope, my dear children, you have understood this beautiful chapter, and this is the fact that we all, in most of the cases, prefer staying away with our fathers. हमें अपने पापा से दूरी बनाए रखना ही उचित लगता है, क्योंकि फादर फिगर जो है वो एक प्रकार से सीरियस और एंग्री मैन की तरह दिखता है हमें. बट द फैक्ट इज़ फादर के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं. हो सकता है वो उस चीज़ को शो ऑफ ना करें, बट स्टिल ही फील्स दैट, एंड ही ऑल्सो loves you in that same way as your mother loves you. So that was all from this story. I hope you have understood. So thank you, take care, and God bless you.